Hey everyone, today we will discuss all the three chapters which are in your PT1 syllabus. The first one chapter is about me. First one we will discuss this chapter, then we will go to my body, and the third one is chapter is my family and friends. Okay, so without wasting your time, we are going to start this one. So in the first one chapter we discuss how a baby born. At the time of the born, anyone is born who is in the form of baby. Okay, but growth is the process which happen throughout our life. Okay, throughout our life we grow. At the time of birth we were a baby, we were in the form of baby, but slowly we grow up, and at the age of 14 years a baby become an teenager, and at the age of 18 years that the same baby become an adult one. Okay, so the growth is the natural process and it happens throughout your life. Okay, so teenagers are at the age of 14 years or 13 years. When you are 13-year-old or 14-year-old you become teenager, and when you born you are baby, and when uh, you are at the age of 18 year you become an adult person. Okay, so growth is the process which happens throughout our life. Okay, but few things happen when we grow up. For example, when you are not able to do anything. Okay, but when the time passes and you become a 4 or 5 year a boy or girl, you are able to do lot of things, like you tie your shoelaces, you comb your hair, you can comb your hair, you can eat yourself, you can take bath yourself. Okay, you can wear your cloth yourself. So with the growth and with the growing up you learn lot of things. Okay, so we learn new things daily, and the learning is the process which happen parallel to the growth. Okay, your growth is happening in the same way your learning of new thing happen. Okay, so few things are you feel little difficult to do and few things are very easy to do. Okay, so this is the like this is very easy to understand. For example, I can say that uh, whenever your math teacher told you a new sum, so you feel difficult that. Okay, and whenever you tie your shoelaces you feel first time it is difficult. Okay, so difficulty is not that is that much difficult. Difficulty is in the mind, but when you do that thing lot of time it will become more easy for you. Okay, so learning is the process which happen daily basis. Okay, next thing is that you people are very special, and there is no comparison between the two students or two kids. Okay, for example, two kids are there and one is good in the drawing and one is good in the reading. So always keep this thing in your mind, there is no comparison between two kids because no two fingers are equal. Okay, two fingers are never equal. Same in the same way two boy or two girl are not equal. They are different, their nature are different, they think differently, they do their work differently, and they are completely different. So there is no comparison in them, so don't compare yourself with anyone. Okay, you are special. Always keep this thing in your mind that you are special, and you matters a lot for your family and your friends. Okay, you are too much, you are extremely good for your teachers. So never feel that you are downward to anyone. If anyone is getting 100 marks in the math exam and you are getting just 50, that doesn't mean that you are foolish or you are not that much intelligent. You maybe you have, and it is very possible, it is probable that you have lot of possibilities in your nature. Okay, it's just you need to find out them, the thing in which you are good. Okay, so growing up is the process which happens throughout your life. Okay, and always keep this thing in your mind that you are special and lot of people love you. So always keep this in your mind that you are special and no one is like you on the whole world. Okay,
Next, now going to the next chapter, that is my body. Yes, chapter number 2, my body. So your body is a very very special thing for you. We all are nothing without our body. Okay. So we our body consists a lot of body organs. Some are inside of our body and some are outside of our body. Okay. So the different we are discuss about the different organs of our body. So three type of organ you can see in your body. First one is external organs. External organs are the organs which you can see outside of your body. Okay. Like meanwhile आप अगर अपनी बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन देखते हैं जो कि आप देख सकते हैं, आँखों से आप अपनी देख सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे पास है, दैट मीन्स दैट इज़ योर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल योर हेयर, योर चीक्स, योर फेस, ओके, योर हैंड्स, योर लैग, योर चेस्ट. ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन. एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहर का. ओके, सो द ऑर्गन्स विच आर ऑन द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, जो बाहर की साइड में आपके ऑर्गन्स हैं, दैट इज कॉल्ड external organs. Okay, I hope you understand external organs. Next one is internal organs. But few organs are inside of your body. Those organs are called internal organs. So the brain, here I'm giving you, and I'm going some more detailed for you. The first one is brain. Brain is the internal organ which is situated in your head. Okay. Under your hair there is a layer of skin, and inside that a big very very essential thing placed, that is your brain. Okay, whatever you do, whatever you think, and whatever you are able to take the decisions, so your everything is just because of the brain. For example, आपको एक if you want to pick the glass of water from the table, ओके, सो आप कंट्रोल में है, यू आर एबल टू डू दैट जस्ट बिकॉज ऑफ द फंक्शंस ऑफ ब्रेन विच इज़ हैपनिंग इन साइड इट. ओके, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो ब्रेन है उसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. और फंक्शंस, द फंक्शंस ऑफ अ ब्रेन आर टू थिंक. यू आर एबल टू थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन. यू आर अंडर कंट्रोल जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन. ओके, सो it is important body part. Next one is heart. Your heart is also important, that pump blood and send it to all parts of the body and run for some time. And have you ever feel the heart beating faster? कभी आपने देखा है you are running and you feel that your heart is beating faster than before? So just because of the heart, when we run or do any exercise, the heart pumps blood faster as the blood needs more energy, your body needs more energy. So heart started working properly and start pump your blood in the fast manner. Okay, so the next one is your lungs. Lungs are 2 in the number and it is inside your body. They help you to breathe. Okay, they are 2 in the numbers. The air we breathe in through our nose goes to the lungs. देखिए यहाँ ये आपकी नोज़, और ये नोज़ से आपके होते हुए आपकी ब्रीदिंग गई, और ये ब्रीद आपकी लंग्स में गई. ठीक है, ये लंग्स जो हैं, ये लंग्स हैं, ये दोनों 2 lungs are there. So the air we breathe in through our nose goes to the lungs. And at that times आप बलून का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये बलून है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आपने इसमें एयर इंजेक्ट करी, कैसे भी इंजेक्ट की हो, आपने मुंह से इंजेक्ट की हो या जो मशीन पंपिंग मशीन आती है उससे इंजेक्ट की हो, और जैसे आप एयर इसमें इंजेक्ट करते हैं ये आपका इस तरीके से बलून बन जाता है, फूल जाता है. ठीक है, तो ये कब होता है, कैसे होता है ये, क्योंकि इसमें एयर आ गई है अब. ठीक है, तो एयर जब आ गई है तो यही चीज़ एप्लीकेबल होती है लंग्स के ऊपर, क्योंकि ये एक बलून की फॉर्म में होते हैं. और आप ये देख सकते हैं कि जैसे इनमें एयर जाती है, इट लुक लाइक अ बलून. ओके, जब एयर आपकी बाहर आप इसे इंजेक्ट करते हैं, बाहर जाती है, तो उस टाइम पर ये आपकी एयर
ये आपके रेगुलर फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका जो प्रोसेस होता है ये चलता रहता है, ठीक है। तो द लंग्स गेट बिगर व्हेन दे फिल्ड विद द एयर, और जब ये एयर बाहर जाती है तो ये फिर से रेगुलर फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टमक। तो अब इस बात करते हैं स्टमक की। द स्टमक दैट वी ईट गोज टू द फूड वी ईट दैट गोज टू द स्टमक। ये पाउच की जो शेप की, जो भी आपकी पाउच की शेप है, देखिए ये आपका स्टमक है पाउच शेप में, ठीक है। पाउच शेप में वॉट एवर यू ईट फ्रॉम योर माउथ दैट गोज टू द स्टमक, एंड एट द टाइम स्टमक चेंजेस द फूड इनटू अ लिक्विड फॉर्म। ओके, आपको पता होगा कि आप जो भी खाते हैं वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, कुछ भी आप खाते हैं वॉट एवर यू ईट, सो बट द स्टमक कन्वर्ट इट इनटू द liquid form, okay, and make it digest the at that time we get lot of energy from the food we eat, and we get strength to work on the daily basis, and whatever you do just because of the strength in your body, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रेंथफुल हैं, ओके, तभी आप कोई भी एक्ट कर पाते हैं, कोई भी टास्क आप कंप्लीट कर पाते हैं। इफ़ यू डोंट हैव एनर्जी you will not be able to do anything. So thanks to the stomach कि आपका जो भी ईटेबल्स होता है वो आप अपने अंदर लेता है और उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करके और पूरी बॉडी में एनर्जी को वो ट्रांसफ़र करता है, ओके। सो आगे देख लेते हैं। ये आपके 4 इंटरनल ऑर्गन्स थे, ये अंदर होते हैं, इनसाइड, दे आर इनसाइड ऑफ योर बॉडी एंड यू आर नॉट बी एबल टू सी देम, ओके, आप इन्हें नहीं देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। Now next one, external organs are, I already told you, the external organs are the organs which we can see, they are called external organs, for example hands, legs, chest, okay. So third type of body organs are there in our body, those are called sense organs. So what are sense organs? Sense organs are the organs that help us to know about the world around us. Means, for example, if you are going to the park में क्या क्या है, ट्री है पार्क में, ठीक है, other children are playing, okay, some birds are flying over there, okay, grass is green, the leaves of the tree are green, okay, the stem of the tree is brown, the color of your friend, color of the clothes of your friend who wear. So how you know all these things? You know and you feel all these things just because of the organs which are called sense organs, ठीक है। So there are 5 sense organs in our body. First one is eyes. With the eyes you can see the world, you can see the things around you, you can see your mama, your papa, your ma'am, your sir, your friends, your nanny, television, computer, video games, everything you can see with your eyes, just because it is possible, just because of the eyes, okay. Next one is nose. Whatever you smell, हैव यू एवर गो थ्रू द सिचुएशन, आपकी कोई फेवरेट डिश बनी हो एंड दैट कुक इन द किचन एंड यू नो विद द स्मेल, यस, अगर कभी भी कुछ भी कुकिंग हो रही होती है और आपको पता लगती है कि वो क्या बना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नोज। सो थैंक्स टू द नोज यू आर एबल टू फील द थिंग्स विद द स्मेल, ओके, it is just because of nose. Next one is ear. How you hear the things, which music is playing, what your mom is saying, who is calling you, whatever you are listening in the home, whatever you are listening in the school, okay, what is going on the television and which music you are listening, everything is because of ears. Ears are twice, they are in the pair and they are both side of your face, okay. Skin. Next one is skin. What you feel and what you touch, whatever you feel and whatever you touch is just because of the skin, okay. So feeling and touching is you know about it just
skin is the functioning well. So you know the things which is hot, which is cold, okay, which is chilled, okay, hard, soft. So where is your skin? Your skin is from your head to toe. आपके हेड से लेकर टो तक जो भी बॉडी पर लेयर लगी हुई है, जो लेयर है आपकी बॉडी के ऊपर, वो स्किन है आपकी. और आप उस स्किन से कोई भी ऐसी चीज़ टच करते हैं, आपको पता लग जाता है. यू विल एबल टू नो दैट इज़ हार्ड, सॉफ्ट, हॉट, कोल्ड, चिल्ड. यू नो एवरीथिंग. ओके. नेक्स्ट वन इज़ टंग. आप टेस्ट कैसे करते हैं? अगर टंग नहीं होती तो आप कुछ भी, जो भी आपकी जो भी ईटेबल आइटम है, सब आपको एक से लगते. लेकिन अभी आपको हर ईटेबल आइटम का, हर फूड का आपको टेस्ट पता है. यू नो एवरीथिंग कि वो सोर है या फिर आपका स्वीट है या फिर मतलब जैसा भी फ्लेवर आपको पसंद हो, वो कैसे फ्लेवर में है वो आपको पता है क्योंकि आपके पास टंग है. सो टंग इज़ make you feel the things whatever you eat, the taste of the things, okay, taste of the food items, taste of the drinkable things, taste of the drinks. You know how cold drinks are, you know how ice creams are, you know how your favorite rice, you know how your favorite dishes, you know everything. So this is the function of tongue, to tell you what the taste of the thing with whatever you eat. Okay. So these are the sense organs. 5 sense organs are there, and now it's finished. Organs आपके finished हो चुके हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सेंस ऑर्गन. ठीक है. नाउ वी डिस्कस. अब ये आपकी बॉडी थी, अब ये बॉडी को फिट कैसे रखना है. सो हाउ टू स्टे फिट, बिकॉज बॉडी की वजह से ही, बिकॉज ऑफ बॉडी एंड ड्यू टू आवर बॉडी वी आर टेकिंग लॉट ऑफ एन्जॉय इन आवर लाइफ. So how to stay fit and healthy? We must take care of our body and we want to stay healthy. And यहाँ पर कुछ good habits दी गई हैं जो हर बच्चे को follow करनी चाहिए. Not even a kid. अगर कोई भी person है, कोई भी people है, उसको ये चीज़ें follow करनी चाहिए. First one is take a bath every day. Daily basis पर आपको नहाना होता है. ठीक है. Keeps your nails neat and clean and small. आपके nails जो हैं वो छोटे होने चाहिए और स्मॉल होने चाहिए, और आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए. ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट है कि आपको खेलों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. यू शुड प्ले, यू शुड रन, यू शुड स्किप. आपको घर में बैठ के सिर्फ ये काम नहीं करने होते हैं कि आपको मोबाइल पे वीडियो गेम खेलने हैं या सिर्फ टीवी देखना है. नो, दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. यू शुड प्ले, यू शुड रन, यू शुड स्किप, यू शुड डू साइकिलिंग. ये सब आपको करना चाहिए आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टेक अ प्रॉपर रेस्ट एट नाइट. आपको बेड पर टाइम पर जाना चाहिए. यू शुड गो ऑन बेड, यू शुड गो टू बेड ऑन टाइम एंड यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. You should go to the bed early and you should get up early also. Okay, so these are कोरिलेटेड. अब कोरिलेटेड कैसे हैं कि आप रात में जब तक जल्दी नहीं सोएंगे तब तक आप दिन में जल्दी नहीं उठेंगे. ठीक है. तो सन आ जाएगा लेकिन फिर भी आपका उठने का मन नहीं करेगा क्योंकि आप लेट नाइट सोए थे. तो अगर आप जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी उठ पाएंगे तो फिर आप प्लेइंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग के लिए जा सकते हैं. ठीक है. टाइम पर आप रेडी हो सकते हैं, टाइम पर आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी वीडियोज़ को देख सकते हैं जो आपकी ऑनलाइन वीडियोज़ सेंड की जा रही हैं. सब कुछ आप कर सकते हैं. ठीक है. और टेलीविज़न जो है वो आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं देखना होता है. ये मोबाइल पर भी ये एप्लीकेबल है कि आपको मोबाइल भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाना होता है. ठीक है. नेक्स्ट है आई ईट हेल्दी फूड. शी इज़ सेइंग आई ईट हेल्दी फूड. आप लोग बच्चे क्या करते हैं? मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना. वाई? यू शुड ईट एवरीथिंग whatever you serve in your plate. जितना भी आप ले रहे हैं आपको सारा खाना है और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. नो, दिस इज़ नॉट फेयर. ओके. सो दीज थिंग्स आर अनोइंग फॉर योर मदर ऑल्सो. आपकी मदर के लिए भी ये चीज़ें अनोइंग होती हैं. ठीक है. तो आप उनको परेशान ना करा करें. जो भी आपको प्लेट में सर्विंग मिलती है, जो भी आपको प्लेट में सर्व किया जाता है,
उसको हैप्पीली आपको खाना होता है, ठीक है। और सब कुछ खाना होता है, सारे फूड ग्रुप्स में से आपको खाना होता है, सारे फ्रूट्स जो होते हैं, हर टाइप के फ्रूट्स आपको खाने चाहिए, हर टाइप के आपको वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ठीक है। नाउ ये सेकेंड चैप्टर इज फिनिश्ड. नाउ वी आर गोइंग टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज फैमिली एंड फ्रेंड्स. फैमिली क्या होती है? फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद दैम वी लिव इन अ सेम हाउस. हम एक ही घर में जब कुछ लोगों के साथ रहा करते हैं तो वो हमारी फैमिली होती है. फैमिली इज़ ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ सिंगल फैमिली, सॉरी स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली. ये दिस पिक्चर इज़ ऑफ इज न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है. यहाँ पर आपके फादर हैं, मदर हैं और एक किड है और एक डॉग है. ओके, सो हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर? ओनली 4. सो दिस इज स्मॉल फैमिली, ठीक है. यह स्मॉल फैमिली वो होती है जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, यानी कि फादर, मदर और 1 और 2 किड्स, ठीक है. एक पेट एनिमल हो सकता है बट दैट इज़ नॉट कंपल्सरी. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल फैमिली. नाउ नेक्स्ट वन इज सिंगल पेरेंट फैमिली. बट ड्यू टू सम कैजुअलिटीज़ और ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज, सम रीजंस, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे किसी बच्चे के सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट होता है, या तो सिर्फ मदर होती हैं या सिर्फ फादर होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली. एंड यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इज़ अ गर्ल who is sitting with the mother. Okay, she is sitting with her mother. So this is the example of single parent family. यहाँ पर फादर नहीं है, he is disappeared. I told you due to some reasons पेरेंट यहाँ पर दोनों नहीं होते, एक ही पेरेंट होता है. तो इस तरह की फैमिली को हम कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली, ठीक है. नेक्स्ट वन इज जॉइंट फैमिली. अब जॉइंट फैमिली की बात करें तो ह्यूज फैमिली इज दिस एंड लॉट ऑफ मेंबर्स आर देयर इन दिस फैमिली. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, okay, uncle, auntie, your father, your mother, your sister, your brother, your cousins, your aunt. Okay, so lot of members are there and they are living together, they are living in the combined form. एक ही घर में इतने सारे लोग साथ साथ रहते हैं, that is called joint family, ठीक है. So 3 types of family are there and these are completed. Now family tree के बारे में बात करते हैं. family tree जो होती है वो एक ट्री होती है, एक ड्राइंग होती है एक तरीके से. दिस इज़ वन काइंड ऑफ ड्राइंग जिसमें आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को शो करते हैं, ठीक है. यहाँ पर जैसे शो हो रहे हैं, ये ग्रैंड फादर हैं, ये ग्रैंड मदर हैं, ये फादर, ये मदर, ये अंकल, ये आंटी, ये अंकल आंटी के छोटे छोटे बच्चे और ये आप तीनों, ठीक है. तो ये फैमिली ट्री है. क्या है ये? फैमिली ट्री है. आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फैमिली ट्री क्या है, या फिर ये पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी ड्राइंग होती है जिस ड्राइंग में ये बताया जाता है कि, या ये चीज़ एक्सप्लेन की जाती है कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स को ड्राइंग की फॉर्म में किस तरीके से दिखाया जाता है, तो फैमिली ट्री के थ्रू. दिस इज़ वेरी सिंपल. आपको सिर्फ वहाँ पर फैमिली ट्री पर आपको टिक करना है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है. नाउ फैमिली, योर फैमिली इज़ अ फन टू. फैमिली आपकी फ़न भी होती है. फैमिली के साथ आप पिकनिक पे जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. आप घर पर बैठकर कंबाइंड फैमिली में आप टीवी देख सकते हैं, ठीक है. और बहुत कुछ कर सकते हैं. आप लोग खेलने जा सकते हैं साथ साथ पार्क में. तो फैमिली अगर साथ में है तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बुक्स रीडिंग कर सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, यू कैन प्ले चेस ऑल्सो, ओके. और आप वॉक पे जा सकते हैं, यू कैन गो टू वॉक विद योर फैमिली मेम्बर्स टू. सो फैमिली इज़ अ फन टू. फैमिली के साथ रहने में बहुत फ़न भी है, बहुत मज़े हैं, ठीक है, जो अकेले रहने में नहीं होते हैं. तो अपनी फैमिली की रेस्पेक्ट करिए, ठीक है. कभी भी ये ज़िद नहीं कि मुझे ये करना है या मैं ऐसे ही रहूँगा या मैं ऐसे ही रहूँगी. नो, ट्राई टू कोऑपरेट विद योर फैमिली मेम्बर्स. सो एक्सेप्ट फैमिली. अगर फैमिली से बाहर की बात करें तो हमारी एक अलग फैमिली और बनती है, वो होते हैं हमारे फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स टुगेदर मेक अ स्पेशल काइंड ऑफ फैमिली. और ऐसा कहा जाता है कि फ्रेंड्स आर द सिबलिंग विच गॉड फॉरगॉट टू गिव अस. यानी कि
फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे वो भाई और बहन होते हैं जो गॉड हमें देना भूल चुके होते हैं, तो वो एज अ फ्रेंड हमें उनको देते हैं। तो फ्रेंड्स भी आपकी फैमिली होते हैं और दे आर जस्ट लाइक अ गिफ्ट फॉर यू इन योर लाइफ। You can share your all your happiness and your grief with your friend. You can share your things with your friends. And whenever you are in the need, आप ज़रूरत के समय पर भी अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेते हैं, आपको उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। आप फ्रेंड्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपके टॉयज़ जो होते हैं कभी कभार वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर आपको लोगों से दोस्ती करनी है वही आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टॉयज़ भी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, बुक्स भी आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स एवर। बुक्स से बड़ा फ्रेंड कोई नहीं होता है, तो बुक्स को भी आप एज अ फ्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। आप वेन एवर यू आर फील बोर, आप बुक लेके बैठेंगे और आपकी सारी बोरियत, आपकी जितनी भी बोरिंगनेस होगी सब चली जाएगी। सो बुक्स आर द स्पेशल फ्रेंड्स इन योर लाइफ। ओके, समटाइम पेट डॉग्स और पेट एनिमल्स, पेट्स में कुछ भी हो सकता है, डॉग्स हो, कैट्स हो, काउज हो, सो दे आर ऑल्सो योर फ्रेंड। सो नॉट ओनली द बॉय और गर्ल्स आर फ्रेंड्स, नॉट बॉयज आर फ्रेंड्स, टॉयज, बुक्स and pets are also friends. Okay, so this is the last of the video. The friends are the siblings which God forgot to give us. Okay, now this is end of the chapter. One more video we will do. In that video we will do all the exercises, मीन्स आपके चैप्टर्स में जो एक्सरसाइजेस थी हैं। नाउ आई टोल्ड यू द समरी ऑफ 3 चैप्टर्स, मैंने आपको 3 चैप्टर्स की समरी बताई है। ओके, और एक्सेप्ट समरी आपको मैं एक्सरसाइजेस भी करवाऊंगी, उसमें मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, येस और नो, क्वेश्चन एंड आंसर्स, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वन वीडियो बिफोर योर एग्जाम्स, सो डोंट वरी अबाउट इट। और अगर आप इतनी वीडियो को भी ढंग से समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो भी आप सारा पेपर कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।